Hello students, good morning. This is Abhishek sir and you are watching me on YouTube. My YouTube channel is to be subscribed and shared and viewed. So many views that you can because you are going to help others. Just like you are watching this video, you are getting a help. You are understanding a lot of grammatical things and you are practicing your particular part of grammar like speaking sentences, like framing more sentences, and after all, speaking to the world. So English is not a language of a particular person, particular reason, particular authority, or someone who is from a particular country, state, or any locality. But actually, it is a language of the mankind, like worldwide community of people, majority of people, actually congress of people loves to speak together in like circle, making more friends, becoming more social. That's why it is very important to understand and speak at least one language that is more fruitful and more applicable in all the times, all the terms. Like whoever you meet, whoever you trust or rely or believe or talk, and whenever you go and wherever you try to do some business or meet people, you have to be very happy with someone who are talking to you, and you need to be very much happy at the time of conversation and communication. So today we are going to practice non-stop English language fluency because this is really required for your lifetime approach of language, like sites, arena. This is how. So how am I going to teach you is a very different manner, and that I am going to show you now, as I am going to start one topic, a chapter called present, past and future tense. So in present and past and future tense, you better know that sentences are actually of three types, three times. One is in present, one is in past, one is in future, and after all, you are saying something to someone who is understanding your ideas and asking more things, and sometimes he is explaining something, sometimes you are explaining something. This is how you continue to talk. For those students who understand Hindi better, I'm going to start in Hindi, and after all the session is going to help them. So, अभी हिंदी में स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम अभिषेक सर है और आप देख रहे हैं मुझे इंग्लिश तेज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे. काइंडली इसको शेयर, सब्सक्राइब और व्यू करो ज़्यादा से ज़्यादा, और आप इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं जहाँ पे उनका इंग्लिश इंप्रूव हो सकता है. देखिए, हम बात करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस की. अगर हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस की, तो किसी न किसी टाइप का होता है, किसी न किसी टाइम का होता है, किसी न किसी एक फ्रेमिंग, एक फॉर्मूला का सेंटेंस होता है, और आपको ध्यान से देखना है कि सेंटेंस का एक्चुअली सेंस क्या है, इस सेंटेंस का एक्चुअली फॉर्मूला क्या हो सकता है. सबसे पहले एक फॉर्मूला है जो है SSTF. ये जो सेंटेंस मेकिंग फॉर्मूला हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया, वो स्कैन द सेंटेंस जस्ट लाइक scanning anything to find out some errors or to find out anything that is actually hidden. We sometimes scan. हम स्कैन तभी करते हैं जब कुछ छुपा होता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कोई बग हो, चाहे वो कोई एरर हो. हम उसे फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस बग्स को, उस एरर को, उस सर्टेन एक प्रॉब्लम है जो कि उसमें छुपी हुई है. हमें उसको क्या करना होता है ना कि स्कैन करना होता है. स्कैन करने से क्या होता है, उस सेंटेंस के अंदर से छुपा हुआ सामने आ जाता है. तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में पहला लिखा है स्कैन द सेंटेंस. ये फॉर्मूला है स्कैन द सेंटेंस. जस्ट टू फाइंड आउट विच हेल्पिंग वर्ब इज रिक्वायर्ड. किसी भी सेंटेंस को ले लो, सबसे पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि मुझे उस सेंटेंस को, भले ही वो हिंदी में लिखा हुआ है, आप उस सेंटेंस को स्कैन करेंगे अपने मन की आंखों से, अपने मन के मैग्नीफाइंग ग्लास से. आप ये देखेंगे कि उस सेंटेंस में कोई तो हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है. इस एच का मतलब हो जाता है हेल्पिंग वर्ब. ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब ही एक्चुअली उस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करने में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले ज़रूरी होती है. तो आप देखेंगे किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कुछ तो होती है, जो चाहे वो प्रेजेंट टेंस की रिमाइंडर हो, चाहे वो पास्ट टेंस को रिमाइंड करता हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस को बताता हो. ऐसे में एक हेल्पिंग वर्ब उसमें छुपा होता है. अगर सेंटेंस हिंदी का है तो उसमें से वो टेंस पता चलेगा, वहाँ पे टेंस से हेल्पिंग वर्ब पता चलेगा. और ये जो तीसरा है यहाँ पे, ये है टाइप ऑफ सेंटेंस. टाइप ऑफ सेंटेंस.
जब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं किसी भी टेंस की या किसी भी सेंटेंस की, तो उसमें एक्चुअली कोई एक टाइप होता है और वो टाइप एक्चुअली 4 टाइप के होते हैं। जब हम उन्हें मॉडल ऑक्सिलरी या फिर उन्हें हम टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो इसमें 4 टाइप कौन कौन से हैं? पहला सिंपल, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा डबल इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसे आप इस तरह से either you can say it double interrogative or you can call it, you can say it interrogative negative। सो कोई भी सेंटेंस का जो टाइप है वो आपको पहले पता करना है। मीन्स आपको किसी भी सेंटेंस में 4 बातें नोट करनी होती हैं। उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, उस सेंटेंस का टाइप क्या है, उस सेंटेंस का मेन फॉर्मूला क्या है, और उस सेंटेंस को हम लास्ट में लिख लेते हैं ट्रांसलेट करके। अगर कोई भी सेंटेंस, मान लो कि एक सेंटेंस इस तरह से हिंदी में लिखा हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, सेंटेंस को फ्रेम करने की, ट्रांसलेट करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिनमें से कुछ टेक्निक्स आज आपको शेयर करता हूँ। जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं दोपहर 2 बजे की बस से अयोध्या जाने वाला था। एक सेंटेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मैं दोपहर 2 बजे की बस से अयोध्या जाने वाला था। आप एक कहानी बताना चाहते हैं, आप एक कोई स्टोरी है जिसका एक सेंटेंस भले ही कितना भी लंबा हो, आपने उसको सबसे पहले अपने मन के कंप्यूटर में, स्क्रीन पे या आपने कॉपी पे उसे एज इट इज़ लिखा। अभी आप इस सेंटेंस में आपको ये सोचना है कि मैं इस बड़े सेंटेंस के कितने छोटे छोटे टुकड़े कर सकता हूँ, और आप इसे नंबर वाइज लिखेंगे, जिससे कि आपका सेंटेंस फ्रेमिंग ईजी होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, सेंटेंस को आपने स्कैन किया। स्कैन करने से आपको पता चला कि इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगा वॉज अबाउट टू। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मॉडल ऑक्सिलरी है, जिसे आप मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं, वो आपको पता चला स्कैन करने से। आपने इस सेंटेंस में पहले ये देखा कि मैं दोपहर 2 बजे, इसमें कोई टेंस नहीं अभी तक दिखा। की बस से जस्ट एक प्रीपोजिशन को ऐड किया गया एक ऑब्जेक्ट से, और अयोध्या एक प्लेस है, एक लोकेशन है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है ग्रामेटिकल वर्ड। आपको एक ग्रामेटिकल वर्ड खींच के बाहर लाना है। एक्चुअली आपको स्कैन करना ही है कि आपको किसी हेल्पिंग वर्ब से आपका सामना हो जाए। आप देख लें कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखना है उसको। सब्जेक्ट तो आपके सामने ही है, सब्जेक्ट को आपको सोचना नहीं है, बट आपको सोचना है दूसरी चीज़, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जो सेंटेंस फ्रेमिंग का जो मूल सिद्धांत है, उसमें वर्ब जो है वो 2 टुकड़ों में आता है, 2 हिस्सों में आता है। पहले आता है हेल्पिंग, दूसरा आता है मेन। इसे आप इस तरह से भी एक दिमाग में एक, जैसे कि न्यूमोनिक्स होते हैं, बहुत मन में बहुत सारी बातें आपके सेट हो सकती हैं। जैसे कोई बड़ा लीडर आने वाला होता है या कोई एक्टर किसी एरिया में आने वाला होता है, तो पहले उसके लोग आते हैं, वो उस एरिया को देखेंगे, कहीं कुछ बॉम्ब तो नहीं प्लांट है, कहीं कोई उसके खिलाफ कुछ पहले से एग्रेसिव तो नहीं है एरिया में, कहीं कुछ प्रोटेस्ट तो नहीं हो सकता है उसके अगेंस्ट। तो ऐसे तमाम चीज़ें उसके लीडर लोग पहले ही आ जाते हैं, उसके छोटे लोग। यानी कि आप एक मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब की कल्पना मन में एकदम सेट रखिए कि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आने वाला है जो उसको हेल्प करेगा। यस बॉस, यू कैन कम नाउ। तो ये हेल्पिंग वर्ब बड़ा खास होता है, और ये सेंटेंस में हेल्पिंग इसलिए होता है क्योंकि इसकी भी हेल्प कर रहा होता है और इसकी भी, यानी इसका मतलब कि वो मेन वर्ब की हेल्प करता है। जैसा हेल्पिंग वर्ब रहेगा वैसा मेन वर्ब को ट्रीट करना है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, या सेकंड फॉर्म लिखना होगा, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में होता है। हेल्पिंग वर्ब अगर वॉज, इज, एम, आर, बी, यानी कि विल बी, शैल बी या बीन टाइप का हो गया, तो इसमें आईएनजी लगने वाला है, यानी ये इसको पूरा हेल्प कर रहा है। जैसा ये रहेगा वैसा ये चेंज होने वाला है, और ये भी इसके जैसा ही होने वाला है, क्योंकि ये अगर हैज़ है तो इसको सिंगुलर रहना है, अगर ये हैव है तो इसको प्लूरल रहना है, अगर ये डू है तो इसको प्लूरल, डज है तो सिंगुलर। यानी इसका इधर भी कनेक्शन पूरा है, ये इधर भी हेल्प करने में लगा है और इधर भी।
तो ये मेन वर्ब को भी और सब्जेक्ट को भी हेल्प करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे कैसी हेल्प कर रहा है आप देख सकते हैं कि मेन वर्ब से पहले आ रहा है और सेंटेंस की पूरी प्लानिंग सेट कर रहा है कि ये सेंटेंस एक्चुअली किस दिशा में मुड़ने वाला है, ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है। क्योंकि आप देख सकते हो मेन वर्ब हर सेंटेंस में वही रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है जाना, तो जाना मेन वर्ब है। अभी इस सेंटेंस में मैं दोपहर 2 बजे की बस से अयोध्या जाने वाला था और वहाँ पे मैं कुछ किसी होटल में खाने वाला था। तो खाना और जाना ये तो किसी भी सेंटेंस में इसी टाइप के वर्ड रहते हैं, जैसे कि मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में वही रहता है। आपको समस्या ये होती है हेल्पिंग वर्ब की। आप जब तक हेल्पिंग वर्ब को नहीं कैच करते आपकी समस्या बनी रहेगी। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब कैच करना है। उसके लिए मैंने आपसे कहा कि स्कैन द सेंटेंस, जो SSTF फॉर्मूला है, ये आप पहले स्कैन करो सेंटेंस को और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का पता लगाओ। आपकी नज़र सबसे पहले इस पे हो कि कहीं ये कोई टेंस तो नहीं है। अगर एक मान लो कि टेंस है तो कौन सा टेंस है, क्योंकि वो पर्टिकुलर टेंस तक जब तक आप नहीं पहुंचेंगे आपको उसका हेल्पिंग वर्ब पता नहीं चलेगा। और स्टूडेंट जब आप हेल्पिंग वर्ब पता कर लेंगे, देखो जब हम खुद से स्टडी कर रहे होते हैं तो ये भी बुक पढ़ लूँ वो भी बुक पढ़ लूँ वो भी, लेकिन जब हम किसी एक्सपर्ट के पास आते हैं तो हमको सीधा रास्ता बताता है। हमारा तमाम स्ट्रेस, तमाम बर्डन, तमाम बॉदरिंग्स बच जाता है। तो जो रास्ता आपको बताया जा रहा है इस पर बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको सिंपल आइडिया मिल जाएगा, सेंटेंस इमीडिएट ट्रांसलेट हो जाएगा और आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। यहाँ पे स्कैन करते ही हेल्पिंग वर्ब पता करना है, इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है, कौन सा वर्ड है जो इस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल चेंजेस कर रहा है। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंस है उसका। तो यहाँ पे है उसके बाद टाइप। अब ये सेंटेंस किस टाइप का है आप देख सकते हैं। ना तो इस सेंटेंस में कुछ पूछा जा रहा है तो ये इंट्रोगेटिव नहीं हुआ, ना तो इस सेंटेंस में कुछ मना किया जा रहा है तो भी ये इंट्रोगेटिव नहीं हुआ, सॉरी नेगेटिव नहीं हुआ। और ये सिंपल है, सिंपल है क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट छुपा हुआ है, हम कुछ बता रहे हैं। किसी कहानी में एक सिंपल सेंटेंस है, एक उसमें पॉजिटिव बात है, एक सीधी बात है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि मैं दोपहर के 2 बजे से अयोध्या जाने वाला था, या शाम के 4 बजे की ट्रेन से दिल्ली जाने वाला था, या सुबह की 6 बजे की फ्लाइट से अमेरिका जाने वाला था। वॉट एवर कि आप इस तरह के सेंटेंसेस एक बना लो तो आप 50 बना सकते हो। तो समस्या ये रहती है कि आप इसे कितने टुकड़ों में ब्रेक करें कि आपका जो स्ट्रेस है, सेंटेंस जो लंबा आपको दिख रहा है एक्चुअली वो मन की आंखों से छोटा छोटा टुकड़ों में दिखे। तो सबसे पहले हमें समझते हैं इसे टुकड़ों में कैसे बांटते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको एक नॉर्मल फ्रेमिंग सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो कि हर सेंटेंस का होता है, उसको तो आपको ध्यान में रखना ही है। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको एक लंबा सेंटेंस दिख रहा है तो उसको बोलेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको इसमें मैं सब्जेक्ट को बोलना है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको टुकड़ों में करने में सक्सेसफुल हो गए तो आपका सेंटेंस यूँ ट्रांसलेट हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दो हिंदी की सेंटेंस की तरह इंग्लिश के सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं होते, वो टुकड़ों में बोले जाते हैं। आपको वो टुकड़ों को बोलना है, आपको टुकड़ों में बोलना है और आप लंबे सेंटेंस बोल पाएंगे। दैट्स माई प्रोमिस। सो यहाँ पे आपने मैं लिखा, उसके बाद पहला सेंटेंस हो गया, मतलब पहला पार्ट इसका हो गया। सबसे पहले आपको आई बोलना है। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाला था, वाला था। फिर है जाने। आपको ये समझना है कि पहले क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है। अगर आप इस तरह से इसको समझ सकें तो यूं ट्रांसलेट कर दोगे सेंटेंस को, आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो देखो मेन फॉर्मूला एंड द बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, जो बुक्स में नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं पे नज़र रखनी है कि जो कि सेंटेंस का करता है, करता धरता भरता, आप समझ सकते हैं पावर सबसे ज़्यादा उसी में है। वही सबसे ज़्यादा खास है, सबसे अहम है, सबसे ज़रूरी शब्द है सेंटेंस का, जिसके बारे में बात हो रही है कि भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ कोई और होता, उसका नाम ले रहे होते, उसको भी हम सबसे पहले लिखते, क्योंकि वही सेंटेंस का सब कुछ है, वही सबसे ज़रूरी शब्द है उस सेंटेंस का। तो आपने यहाँ सबसे पहले मैं लिखा, उसके बाद वाला था, और आप जाने उसके बाद लिखे हैं। तो उसके बाद है अयोध्या। अब यहां पे के लिए, अयोध्या के लिए, इसमें के लिए नहीं लिखा है, बट किसी भी लोकेशन पे अगर जाना है तो उसमें के लिए की तरफ ये शब्द वहां पे आ ही जाएगा कि आप अयोध्या के लिए, अयोध्या की तरफ।
और ये जो प्रीपोजिशन इसको बोलते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि ये गेम कैसा है, चेंज करता है सेंटेंस का, और ये एक्चुअली यहाँ से जंप मार के इसके पहले आ जाएगा, यहाँ पे इस छोटी जगह पे आके ये सेट हो जाएगा, इस छोटी जगह पे अयोध्या से भी पहले ही आ जाएगा। भले ही हिंदी में बोला जाता है कि अयोध्या के लिए, अयोध्या की तरफ, अयोध्या में, इस तरह में बाद में बोला जा रहा है, मतलब अयोध्या पहले, बट इंग्लिश में इन अयोध्या, टू अयोध्या, फॉर अयोध्या। तो इन, ऑन, अंडर, ओवर, एट, विद, बाय, फॉर, ये जो वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशन है। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। इनका काम ही होता है कि पहले आ जाता है। जैसे आप हिंदी में देखें, हिंदी में लिखा हुआ है घर के अंदर, तो हिंदी में घर पहले बोला जाता है और के अंदर को बाद में, बट इंग्लिश में ये सबसे पहले आ जाता है। ये कहता है मुझे पहले पोजीशन चाहिए, इसके लिए इसका नाम है प्रीपोजिशन। ये के अंदर बोलेंगे इन, और ये चला जाता है लास्ट में, इसको शिफ्ट कर देता है। और इन द हाउस या इन द होम, इन माई होम, इन योर होम, इन योर हाउस, इन माई हाउस, इन पहले आएगा, भले हिंदी में बाद में है बट इंग्लिश में सबसे पहले आएगा, इसके लिए इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। यही नहीं, अगर आप मान लो, अगर आपने कहा कि मैं मेरे दोस्त के द्वारा, मुझे मेरे दोस्त के द्वारा बड़ा सम्मान मिलता है, तो हिंदी में तो आप दोस्त के द्वारा बोलते हैं, दोस्त के जरिए बोलते हैं, बट आप इंग्लिश में बाय पहले बोलेंगे, बाय माय फ्रेंड। अभी बाय क्यों पहले आ गया? ये क्योंकि ये प्रीपोजिशन का शब्द है और इसकी इंपॉर्टेंस इससे ज़्यादा है इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्त इंपॉर्टेंट नहीं है, के द्वारा इंपॉर्टेंट शब्द है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टॉप इट।